Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will talk about the suggestion for semester exam for the subject computer architecture. So यह basically subject जो है 4 सेम CSC के लिए और कुछ अदर ब्रांचेस के लिए भी है. ओके, सो यह वीडियो ध्यान से देखें. Before moving to the suggestion, as usual I wanna tell that don't depend on single module. Okay, I will try to go through each and every module because every module you have a equal important. Okay, no one know from which module Macaud can give the questions or from there where they can set the questions. So I will suggest go through the all module. अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कुछ मॉड्यूल का पार्ट छोड़ सकते हैं, बट पूरा मॉड्यूल छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर आपका लक खराब रहा भाई तो वही मॉड्यूल से पूरा आ गया, देन यू मे फेस प्रॉब्लम. ओके, एंड फॉर गेटिंग नोट्स एंड दिस सजेशन you can join our WhatsApp Telegram study group, okay, where I am sending the notes free of cost. Coming to the suggestions, so first, that is the unit 1, introduction to performance measurement. So some of the important question. First question is explain the basic component of computer architecture with neat block diagram. Second one is quantitative techniques in computer design. Then explain MIPS, FLOPS and CPI. These are the important questions. Next, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, थ्रूपुट एंड लेटेंसी. तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ये सब आप देख के जाइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द पाइपलाइनिंग यूनिट 2. सो पाइपलाइनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस का क्या है, एंड एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन विथ 5 स्टेज डायग्राम. ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक पाइपलाइन को देख लीजिएगा. एंड या क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू पाइपलाइन हैजार्ड. ओके, सो हैजार्ड क्या होता है, डेटा हैजार्ड्स क्या होता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा हैजार्ड दैट you have to go through it. Okay, next, how control hazard and structural hazard handle in pipelining. Describe the various techniques to handle pipeline hazard. So these are the questions you have to go. And then friends, for getting answer of this question you can basically do the GPT, or you can get all these answer from my notes or from the organizer. Okay, so just go through there and that will be basically helpful for you. Next कुछ आता है अदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं. Coming to the next module, unit 3, that is the hierarchical memory organization. यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट कैसे डिज़ाइन, एक्सप्लेन इंक्लूजन, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी एंड मेमोरी डिज़ाइन, कंपेयर डायरेक्ट मैप, फुल्ली एसोसिएटिव्स एंड सेट एसोसिएटिव कैसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बिसाइड दैट्स वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, इसका डायग्राम, बेसिक आप डायग्राम देख के जाइएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, दैट इज़ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU या ऑप्टिमल, ये सब आप देख के जाइएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. Next friend, moving to the next module, that is the module number 4, instruction life parallelism. So you have to go through, you have to get the basic idea of instruction level parallelism, static versus dynamic ILP देख लीजिएगा. Then superscalar and super pipeline architecture with diagram, VLIW architecture, and compare array processor and vector processor with example. What are the challenges exploiting in ILP? So these are the important questions that you must have to go through. Next friend, coming to the next and very very important module, and you can say if your luck will be good, then you will see more than 30 plus marks from this module, that is the module 5, or you can say multiprocessor and non-von Neumann architecture. So first you have to go through the define multiprocessor architecture, describe FLYN taxonomy. FLYN taxonomy friends पिछले I think 22 या 23 में वही से 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. सो यह फ्लैन क्लासिफिकेशन जरूर आप देख के जाइएगा. ओके, बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे क्या होता है, कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं जा सकता है. सो आई विल सजेस्ट गो थ्रू दैट. अगर आपका टीचर पढ़ाएं तो ठीक बात है, नहीं भी पढ़ाएं तो भी आप ये नोट्स देख के जाइएगा. देन सेंट्रलाइज शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक, मेमोरी कंसिस्टेंसी क्या होता है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, दैट इज द बस, क्रॉस बार एंड मेस. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू डू. बिसाइड दैट्स अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू कंपेयर वॉन न्यूमैन एंड नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. सो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बिट डायग्राम आप जरूर देखे जाइएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई एक तो क्वेश्चन आता ही है. ओके, सो दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू गो थ्रू इट. बिसाइड दैट्स इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर कमेंट हियर, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. बार बार बहुत लोग पूछते हैं भैया इस सजेशन कहाँ मिलेगा. सो भाई आपको डायरेक्ट आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. अदरवाइज आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टडी ग्रुप हमारे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन सेइंग फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. दैट इज द डेटा हैजार्ड क्या होता है, कंट्रोल हैजार्ड, ये आप जरूर देख के जाइए. पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. नेक्स्ट, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैप, फुली एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव मैप. ये सब क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और आता भी है. ओके, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फीफो या LRU क्या होता है, ये सब आप देख के जाइएगा. ओके,
एंड पैरेललिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूनिट 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वन नॉन वीमन आर्किटेक्चर, बिट डायग्राम, मेमोरी कंसिस्टेंसी क्या होता है, व्हाट द इंपॉर्टेंट ऑफ मल्टी प्रोसेसर, ये मल्टी प्रोसेसर होता क्या है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड हाउ दे play a critical role in improving the performance of the computer system. So these are the some things you must have to go through it. Okay, so these all things I want to tell. And friends, start preparing for semester exam now. Okay, don't bend for 11th hour or last hour. Okay, so this all thing I want to tell. For getting such informative content, make sure to support and subscribe us. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.